A very good morning, student. This is Srikant and our class 10th Political Science Chapter 6 Political Parties continue. Students, previous classes we have discussed about the national parties and the state parties. Okay, and what is the role of ECI, Election Commission of India, to recognize as a national party and the state party. And today we will discuss about the challenge to political parties and what are the major challenges faced by the political parties. Okay, very important student. A 5-star question for 2021 examination. Students, as you can see your NCERT book पेज नंबर 83 पर बेटा सभी लोग आ जाइए. थोड़ा सा बैकग्राउंड देंगे हम लोग चैलेंज टू द पॉलिटिकल पार्टी एंड वी हैव seen how the crucial political parties are for the working of a democracy. यानी कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है डेमोक्रेसी के लिए बेटा जो है कैसे जो है इम्पोर्टेंट है, क्रूशियल है, कैसे बेटा जो है वो वर्क करती है. ओके, and since the parties are most okay, and we also discussed a previous topic, the political parties are the one of the most visible institution in a democracy, and sometimes people blame to the political parties if the political party is not working well. अगर जब अच्छे से काम नहीं करती तो उसको जो है वो ब्लेम भी करती है. एंड ऑल ओवर दिस टाइप्स ऑफ थिंकिंग पीपल्स वी फाउंड everywhere of the world. Okay, students, challenge to the political. What are the major? What are the challenge of the political parties? And there are 4 challenges. Okay, and which are eventually found all over world. पूरी वर्ल्ड में बेटा पाया जाता है इस तरह के चैलेंज. ओके, तो आपको चारों लिखने बेटा, as well as you will explain all points. And the first is the lack of internal democracy within parties. Okay, student, and this is the first and major challenge to the political parties. As you know, in not only in India, all over the world, and the power concentrated in a few hands in a political party. As we can see, the top leaders concentrate all the powers. Students, as well as the political parties, okay, नो इंटरनल एंड रेगुलर इलेक्शन हेल्ड इन. ओके बेटा, मतलब यानी कि जो पॉलिटिकल पार्टीज में बेटा वो जो इंटरनल जो डेमोक्रेसी है वहां पर जो है रेगुलर इलेक्शन हेल्ड नहीं होते हैं. एंड ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग नो कीपिंग मेंबरशिप रजिस्टर. एंड द मैक्सिमम पॉलिटिकल पार्टी नॉट कीपिंग द मेंबरशिप रजिस्टर. मतलब ये सीनियरिटी है, जूनियरिटी है, ये लीडर हैं तो मतलब 10 इयर्स बाद ये भी इनको जो है कोई पोस्ट जो है पार्टी में मिल सकता है, ऐसा नहीं है. ओके, तो स्पेशली क्या होता है, नो ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग्स वेयर हेल्ड इन द पॉलिटिकल पार्टीज एंड द नो कीपिंग ऑफ द मेंबरशिप रजिस्टर. यानी कि वो मेंबरशिप यानी कि जो मेंबरशिप है ओके उसके रजिस्टर को भी वो नहीं रखते हैं. एंड ऑर्डिनरी पीपल्स, ओके, एंड the all powers exits in the influence person. यानी कि जो प्रभावित लोग हैं ओके बेटा उन्हीं के पास सारा जो है बेटा पावर्स होता है. एंड ऑर्डिनरी मेंबर्स कैन नॉट हैव एक्सेस इंफॉर्मेशन. ओके, एंड व्हाट द टॉप लीडर्स टेक अ डिसीजन. यानी कि टॉप लीडर्स ने क्या डिसीजन लिया उसकी इंफॉर्मेशन जो है ऑर्डिनरी पीपल्स को नहीं. व्हाट आर द पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स launched by the top political leaders. Okay, these types of information not have access information. Okay beta, and ordinary peoples, and so they cannot influence the decision, and so cannot influence the decision of the top leaders of the party leaders. Okay बेटा, ये उसको प्रभावित नहीं कर सकते. कौन? जो ordinary members of the any political parties. And so the first lack of the first challenge of the political party, lack of the internal democracy within the party. डेमोक्रेसी तो देश में है लेकिन खुद के पार्टी के अंदर बेटा किसी भी तरह का कोई जो है डेमोक्रेसी नहीं है. यहाँ पर नो इंटरनल डेमोक्रेसी, नो रेगुलर इलेक्शन विद इन अ पार्टी एंड नो कीपिंग रजिस्टर इन अ पॉलिटिकल पार्टीज. ओके, एंड if you
the ordinary members, if the disagreement with the political leaders lead to the outer from the party, and we can see these types of situation. Okay, if the ordinary members not satisfied the decision of top leaders, ऐसे में क्या होता है बेटा, उसको पार्टी से उठा करके बाहर फेंक देते हैं, जाइए आपका यहाँ पर कोई काम नहीं है। और ये बेटा इट इज द टॉप चैलेंज टू द पॉलिटिकल पार्टी। ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब हम लोग जनरली देखते हैं कि वो डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं, अगर वो अपोज कर रहे नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। किसान बिल को वापस लीजिए, टॉप लीडर अगर करेंगे तो उनको पार्टी से बाहर कर देंगे, एंड अदर थिंग्स। एंड द सेकेंड इज द डायनेस्टिक सक्सेशन। ओके बेटा, एंड द सेकेंड मेजर चैलेंज एज यू कैन सी इन अ सिंपल वर्ड। ओके, यहाँ पर बेटा क्या है कि जो लीडर्स हैं उनके मतलब इन डेमोक्रेसी, ओके, इन इंडिया, नॉट ओनली इंडिया, वट एवर एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। ओके, एंड द मतलब यानी कि लीडर का बेटा ही जो है क्या होगा, अगला लीडर होगा, वही जो है बेटा जो है टॉप पोस्ट को वही जो है क्या करेगा, गेट करेगा। Leaders on the top have an unfair advantage to favor the people close to them or the family members. Okay बेटा, and the dynastic succession का मतलब तो उत्तराधिकारी, यानी कि जो हमारा बेटा अगर जो मैं चीफ मिनिस्टर हूँ तो एंड नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर बिकम माई डॉटर और सन। ओके बेटा, and it is a very unfair. Okay, it is a very unfair in a political parties. Political party तो सबकी है, मेंबर भी है, मेंबर सबकी है, लेकिन जनरली क्या होता है कि जो है मंत्री के बाद उनका बेटा ही क्या होगा, मंत्री बनेगा, एमएलए एमपीज बनेगा। एंड टॉप पोजीशन कंट्रोल्ड बाय द फैमिली मेंबर्स। एज यू कैन सी, आई डोंट हैव टेक द नेम ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टीज हियर। ओके, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लूंगा, आप कमेंट बॉक्स में इसको लिखोगे कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज का जो बेटा टॉप पोजीशन है कंट्रोल्ड बाय द फैमिली मेंबर्स। ओके ओके, ऐसे पार्टीज का नाम आप जो कमेंट बॉक्स में इसको लिखोगे, यू विल राइट इन द कमेंट बॉक्स। एंड वन पार्टी इन द मोस्ट पार्टी, इट इज द बैड फॉर द डेमोक्रेसी। मतलब ये डेमोक्रेसी उसके पास एलिजिबिलिटी है कि नहीं है, उसके पास जो है बेटा कार्य करने की जो है पोटेंशियल है कि नहीं है। हमने जो है केवल मैंने उसको क्यों विधायक या मंत्री बना दिया, क्योंकि वो जो है हमारी फैमिली से बिलोंग करता है, हमसे बिलोंग करता है, इसलिए केवल। इट इज अ वेरी बैड फॉर अ डेमोक्रेसी। And these types of tendency we all over the world, we can see all over the world. And so okay student, this is the second challenge to the democracy. Okay, comment box में आपको लिखना है पार्टी का नाम और जो है जो फैमिली जो बेटा पावर होल्ड करते हैं उसको। And third is the money and the muscles power. Okay, for winning elections and its ट्रेड्स। ओके बेटा, फ्लोराइज्ड विदिन अ फ्यू इयर्स, मतलब कुछ ही सालों में इस तरह के हम लोगों ने मनी और मसल्स पावर के यूज को हम लोगों ने देखना शुरू किया बेटा। ओके, एंड देयर इज नो स्कोप आइडियल पीपुल, इंटेलेक्चुअल पीपुल और ग्रेजुएट पीपुल्स इन अ पॉलिटिक्स इफ द पीपुल्स हैव अ मोर पावर्स। मसल्स पावर्स का मतलब ये होता है उसके पास ढेर सारा पैसा है। ओके, कई सारे कार्स हैं, ठीक है। Okay, and nowadays for winning election the party, okay, top leader give a ticket to the criminal background persons, and it is the right of democracy. बेटा जब हम लोग इस तरह से जो है क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोगों को टिकट देंगे तो क्या वो हमारे लिए कुछ करेंगे? नथिंग। ओके बेटा, यस, तो वी कैन सी हियर द मनी एंड मसल्स पावर। मनी और मसल्स पावर का मतलब होता है कि एक हमारी टेंडेंसी बन गई है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा सीट जीतनी है, तो ऐसे लोगों को हम लोग टिकट देते हैं विच द पर्सन विच हैव अ वेरी लॉट्स ऑफ मनी। ओके, इन दिस सिचुएशन, ओके बेटा, इन दिस सिचुएशन व्हाट हैपेंड हियर, यहाँ पर बेटा क्या होता है, एंड द टॉप बिजनेसमैन डोनेट लॉट्स ऑफ मनी टू द पॉलिटिकल पार्टीज। ये ढेर सारे पैसे बेटा डोनेट करते हैं। ओके, तो क्या होता है, एंड समटाइम दे इन्फ्लुएंस द पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि पॉलिसी और प्रोग्राम्स को प्रभावित भी करते हैं। आज नाउअडेज वी कैन सी, हम लोग देख रहे हैं बेटा, जो बड़े बड़े जैसे मुकेश अंबानी, अदर जो रिच पर्सन है, बिजनेस क्लास पीपल्स है, दे डोनेट अ लॉट ऑफ मनी टू द पॉलिटिकल पार्टीज एंड दे क्या करते बेटा, दे इन्फ्लुएंस द पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स ऑफ गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। अपनी जरूरतों के हिसाब से जो काम गवर्नमेंट को पॉलिसी प्रोग्राम बना चाहिए उसको कौन प्रभावित करता है बेटा? बिजनेसमैन। क्यों कर रहे हैं? कि उन्होंने ढेर सारा जो है
डोनेट किया है, चंदा दिया है, किसको दिया है? पॉलिटिकल पार्टीज को, तो उनको भी तो प्रॉफिट चाहिए। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है बेटा? दे इन्फ्लुएंस टू द पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स ऑफ गवर्नमेंट। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग यहाँ ब्लैक बोर्ड के हिसाब से भी देख लेते हैं। इन दिस चैलेंज द मेन फोकस ओनली ऑन विनिंग इलेक्शन। यहाँ पर क्या होता है, हम लोगों का कंसंट्रेशन केवल विनिंग इलेक्शन रहता है, चुनाव जीतना है चाहे जैसे भी। इसके लिए हमें जो है बैड कैंडिडेट्स यानी फिर क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोगों को भी टिकट देना हो तो हम दे देते हैं। ओके and to shortcut like the raising lots of money and getting the supports of the criminal and advocates. Okay, and parties nominated those candidates who can raise lots of money. ओके जिसके पास ज़्यादा पैसा उसको टिकट देते हैं कि वो खर्च करेंगे खूब, एकदम जो है साड़ियाँ बांटेंगे, मिठाइयाँ बांटेंगे, पैसे बांटेंगे, और जो पीपल्स है वो उससे खुश है। ओके स्टूडेंट, द पॉलिसी एंड डिसीजंस ऑफ द पार्टी आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द रिच एंड पावरफुल पर्सन। आपको मैंने बताया डोनेट अगर आप दोगे तो आप अपने लिए कुछ कार्य करवाना चाहोगे तो आप क्या करोगे? पॉलिसी और प्रोग्राम को चेंज करोगे। ओके एंड नो मीनिंगफुल चॉइस फॉर द वोटर्स। ओके यहाँ पर जो है बेटा नो मीनिंगफुल चॉइस ऑफ द वोटर, यहाँ पर बेटा कभी कभी ऐसा होता है कि इट इज द फोर्थ चैलेंज टू द पॉलिटिकल पार्टीज। ओके स्टूडेंट फूड यहाँ पर आप देख सकते हैं, यू विल टेक पेज नंबर, यू कैन सी द पेज नंबर 84 एंड द फोर्थ चैलेंज लास्ट में बेटा लास्ट पैराग्राफ, ऑफ्टन द पार्टीज डू नॉट सी द ऑफर मीनिंगफुल चॉइस टू द वोटर्स and meaningful choice in the voters, it's mean and sometimes we like to the same ideology political parties, मतलब आईटी उसको करते हैं तो क्या करता है पर्सन जो वोटर जो कैंडिडेट्स है वो पार्टी को छोड़ करके बेटा वो दूसरे पार्टी में फिर तीसरे पार्टी में चला जाता है। ओके और दूसरी अलग अलग पार्टीज की बेटा जो ओपिनियन है जो आइडियोलॉजी है डिफरेंट है। ओके आइए हम लोग बुक के अकॉर्डिंग देखते हैं। एंड इन द order to meaningful choice the party must be significantly different. Okay in recent years there has been decline in the ideology difference among the parties. यहाँ पर बेटा with years we can see in the decline of ideology. Okay बेटा आइडियोलॉजी डिफरेंस among the parties यानी कि जो आइडियोलॉजी जो विचारधारा है ओके उसमें बेटा डिक्लाइंस आया पहले अपनी यानी कि एंड ईच पार्टीज have a same policies and program यानी उनके इम्प्लीमेशन का जो तरीका है वो केवल है। We can take example in Britain conservative and the Labour parties and both policy and programs are same, दोनों का बेटा सेम है ठीक है। and people have only two choice मतलब या तो उसको वो इलेक्ट करे या तो फिर उसको मतलब यानी कि इम्प्लीमेशन में केवल अलग अलग अपने हैं। and they agree ओके बेटा आइए देखते हैं हाँ नेक्स्ट देखते हैं। Parties do not offer the meaningful choice to the voters. In order to offer meaningful choice, parties should not significantly different, but the recent time there has been decline in the ideology difference. मैंने आपको बेटा बता दिया। And many a times people cannot even elect very different leaders or leaders frequently keep the changing their parties by joining other parties. इसको भी हम लोगों ने देख लिया है कि जो पॉलिटिकल जो लीडर्स होते हैं एक पार्टी छोड़ करके दूसरे पार्टी फिर तीसरे पार्टी में चले जाते हैं। So students दिस इज ऑल अबाउट। यहाँ पर आप थोड़ा थोड़ा जैसे यहाँ तो मैंने ज़्यादा दे दिया लेकिन एग्जाम में 5 मार्क्स में आता है तो आप क्या करोगे 2-2 3-3 पॉइंट सारा लिख करके आप आंसर को फिनिश करोगे। लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन पॉलिटिकल पार्टीज ओके एंड द डायनेस्टिक सक्सेशन एंड द मनी एंड मसल्स पावर एंड द मीनिंगफुल चॉइस फॉर द पीपल्स। यहाँ पर बेटा ब्रिटेन का एग्जाम्पल भी आप दोगे लेबर पार्टीज एंड द कंजर्वेटिव पार्टी। दिस इज ऑल अबाउट ऑफ दिस लेक्चर। आई होप इट्स क्लियर। थैंक यू।